Okay, so good afternoon, both of you. Good afternoon, Good Pratiksha. afternoon, Pratiksha. Good Good afternoon, Yeah, sir. afternoon. yeah. Good Good, afternoon, sir. good afternoon, students. So it's my pleasure to introduce to you all that today we have a guest, Mr. Mahesh Mankar. So basically, he is the celebrity Vastu consultant. So and he is the he is a CEO of the uh, his own company, and now he did projects of Vastu Shastra of bungalows, villas of celebrity politicians, sport personalities, and also business tycoons. So lots of companies, malls, multiplex, and corporate offices of big brands are specially designed under his supervision. So welcome, sir. Welcome to our YouTube channel. Thank you so much, Pratiksha, and thank you so much, Kaustubh sir, for having me with you. Actually, बहुत अच्छा लग रहा है. I'm feeling very great to have with Cat Pune, and it's amazing brand. And एक छोटी सी चीज मैं आप लोगों को बताना पसंद करूंगा. See, whenever someone will have you like on board, कोई भी architecture हो, interior designer हो, or anyone like civil engineer हो, the first demand what client will say कि वास्तु शास्त्र के हिसाब से होना. Okay, and this is the first demand what client will have. See, वास्तु शास्त्र आज की डेट में इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट. वास्तु शास्त्र इज प्लेइंग वाइटल रोल. सो दिस सेशन इज गोइंग टू बी अ सुपर पैक सेशन फॉर योर स्टूडेंट्स. बेसिकली आर्किटेक्चर, सिविल इंजीनियर, इंटीरियर डिजाइनर फॉर श्योर. बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से आप बहुत कुछ लेके जाएंगे. Sure, sir. Sure. So We are absolutely confident, Mankar sir, that a personality like you, such a enthusiastic voice you have, I think this would be a great session. So students who are going to see this on YouTube, please take notes of everything that sir is telling. This could be a marquee topic for all of you to take ahead your career. So this is a great skill to have. So over to you, sir. Yeah. Thank you so much, sir. Thank you. Yes, ma'am, we can proceed. yeah, sure. So basically, my first question is, what is Vastu Shastra? व्हाट इज वास्तु शास्त्र? इट्स वेरी Yes. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू नो. और ये मैं इंटरव्यूज में भी बहुत सारा बोल चुका हूँ, जो भी मीडिया इंटरव्यूज वगैरह होते हैं. बेसिकली आई वांट टू शेयर अ प्रेजेंटेशन विथ यू फॉर दिस. मे आई हैव अ परमिशन टू शेयर दैट प्रेजेंटेशन इफ यू डोंट माइंड? Of course, Yeah. sir. Just a minute. Okay, so I hope the screen is in front of you right now. Presentation screen is in front of you right now. चलो, Yes. बहुत बढ़िया. सो सी, जैसा आपका पहला सवाल था, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट सेशन. मैं ये मानता हूँ कि कोई भी जब बिल्डिंग आप कंस्ट्रक्ट करते हो तो उसका बेस, जो उसका फाउंडेशन कहा जाता है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना जरूरी है. और वास्तुशास्त्र का जो फाउंडेशन है, वास्तुशास्त्र का जो बेस है, ये उसका डेफिनेशन ही है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब जैसा आपने पूछा व्हाट इज वास्तुशास्त्र, सो अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, आई एम सेइंग दिस एज पर विकिपीडिया, वास्तुशास्त्र इज अ ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम ऑफ आर्किटेक्ट बेस्ड ऑन एंशिएंट टेक्स्ट दैट डिस्क्राइब प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन, layouts, measurement, ground preparation, space arrangements, and spatial geometry. Most importantly, Wikipedia termed it as a science of architecture. Means already Wikipedia said Vastu Shastra as a science. Okay, so we cannot link science somewhere with a spiritual things, but we have to link the science with spiritual things. Okay, so each and everywhere there is a science. सबसे पहली चीज तो, right? So Vastu Shastra for me it's also a science, because Wikipedia, which is not an Indian company, am I right? Wikipedia is not an Indian brand, but still Wikipedia is saying architecture, science of architecture, which is very important thing. इसका मतलब ये है कि ये विज्ञान का सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है. ओके, बट इफ वी विल गो व्हाट इज वास्तु शास्त्र अकॉर्डिंग टू महेश मानकर, ये मैं इस डेफिनेशन के लिए सबसे ज्यादा पहचाना जाता हूँ, बिकॉज दिस इज क्रिएटेड बाय मी. अकॉर्डिंग टू महेश मानकर, वास्तु शास्त्र इज arranging or constructing the residential, semi-commercial or commercial vastu as per energies, frequencies and light to live happy life is called as Vastu Shastra. Okay, which means constructing or arranging your any of the project, कोई भी project हो, because see project we can like you know divide project in 3 parts. पहला है residential, दूसरा है semi commercial and तीसरा है commercial. Okay, I basically work with all the 3 projects. तो इन तीनों प्रोजेक्ट्स में जब मुझे इनविटेशन आता है, और आई ऑलवेज यूज टू वर्क ऑन एनर्जीज, मुझे उनके लाइट्स पे ध्यान देना होता है, एनर्जीज पे ध्यान देना होता है, और फ्रीक्वेंसीज पे ध्यान देना होता है, ताकि उनको एक अच्छे रिजल्ट्स मिल सके ओवरऑल लाइफ में.
अगर कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट हो तो आई होप वो बाकी के प्रोजेक्ट की तरफ बंद नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज वास्तु प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यू हैव सीन कि बड़े बड़े ब्रांड्स बंद हो जाते हैं, सो देयर माइट बी सम रीजन बिहाइंड वास्तु। ओके, फॉर दैट पर्पज वास्तु इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द 3 एस्पेक्ट्स। ओके, सो दिस इज वास्तु शास्त्र फॉर मी। Okay, great, sir. So, who all can learn Vastu Shastra? एग्जैक्टली सबसे पहले एक और चीज, एक इंपॉर्टेंट चीज है, अभी जो आपने पूछा ना, कैन ऑल लर्न वास्तुशास्त्र, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमें टाइप्स देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ओके, सो बेसिकली देयर आर 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ वास्तुशास्त्र। नंबर 1 इज एनर्जीज। अब एनर्जीज में आ जाता है वैदिक एंड पिरामिड। आपने हल्का थोड़ा बहुत सुना होगा इन चीजों के बारे में, मैं थोड़ा सा ना लेमन टर्म में सिखाऊंगा इसको, मतलब कोई ज्यादा डीप में नहीं और कोई ज्यादा नॉर्मली नहीं, एक एवरेज में, ताकि योर ईच एंड एवरी स्टूडेंट विल कम टू नो अबाउट इट। ओके, सो एनर्जीज विच इज वैदिक एंड पिरामिड। सेकेंड वन इज लाइट, जिसको फेंग शुई भी कहा गया हुआ है। एंड थर्ड वन इज लेक्चर एंटीना टेक्निक, फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ये 3 टर्म आ जाते हैं वास्तुशास्त्र में, दैट इज एनर्जी, जिसमें आता है वैदिक वास्तुशास्त्र एंड पिरामिड वास्तुशास्त्र। दूसरा आता है लाइट, दैट इज फेंग शुई वास्तुशास्त्र, जो चाइना में बहुत ज्यादा फेमस है। फेंग शुई इज अ चाइनीज टेक्निक। ओके, तीसरा आ जाता है फ्रीक्वेंसी यानी लैचर एंटीना टेक्निक। एक हमारा डिवाइस होता है लैचर एंटीना, उससे हम वास्तु को कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसीज को कैलकुलेट करके डिसीजन ले सकते हैं। अब आपका मेन क्वेश्चन है, हु ऑल कैन लर्न वास्तुशास्त्र? ओके, एनीवन कैन लर्न वैदिक वास्तुशास्त्र, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज की डेट में अगर कोई भी क्लाइंट आपके सामने आ रहा है तो वो वैदिक वास्तुशास्त्र से ही बात करेगा। ओके, वो हमेशा बात करेगा कि ईशान्य में ईश्वर होना चाहिए, आग्नेय में अग्नि होनी चाहिए, वायव्य में वायु होना चाहिए, नैऋत्य में हेवी यानी लोहा होना चाहिए। ओके, तो ये नॉर्मल चीजें हैं, बहुत ज्यादा नॉर्मल चीजें हैं, तो ये कोई भी पढ़ सकता है, नो डाउट। मैं तो बोलता हूँ कि इसके लिए कोई स्पेशल कोर्सेज भी करने की जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू डू एनी स्पेशल कोर्सेज फॉर दैट, यू कैन लर्न इट फ्रॉम एनी ऑफ द बुक, यू कैन लर्न इट फ्रॉम माई लिंक्डइन प्रोफाइल ऑल्सो इफ यू वांट, है ना। वहां पे मैं वास्तुशास्त्र का कंटेंट लिंक्डइन पे ज्यादा डालता हूँ। यू कैन लर्न इट फ्रॉम एनीवेयर, बट इट रिक्वायर ईयर्स ऑफ प्रैक्टिसेस टू लर्न अदर टेक्निक। मतलब जो पिरामिड हो गया, फेंगशुई हो गया, लेक्चर एंटीना टेक्निक हो गया, ये ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के साथ ही आप इसको पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इट वोंट बी पॉसिबल फॉर यू। बट मेरे हिसाब से जो आपके स्टूडेंट्स रहेंगे उनके लिए वैदिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज वेरी एंशिएंट टेक्निक, हजारों सालों से चलती आ रही है। ओके, और क्लाइंट भी डिमांड करेगा तो वैदिक वास्तु ही डिमांड करेगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लाइंट ऑल्सो। Okay. Yes. So anyone can learn Vedic Vastu. Anyone can learn Vedic Vastu, no doubt in that one. Okay, so why is it given so much importance in these days, and why you give Vedic Vastu that much importance? अच्छा, एक सवाल आपने पूछा अभी, व्हाई इट इज सो मच इम्पोर्टेंट, और उसके बाद आपने वर्ड यूज किया नाउअडेज। ओके, आई एम गोइंग टू टेल यू वन थिंग, ये जो नाउअडेज है ना, इसको हटाना पड़ेगा, बिकॉज सी, वास्तुशास्त्र इज नॉट इम्पोर्टेंट नाउअडेज, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम, एंड इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, फॉर श्योर। मतलब ये अभी नहीं है, नाउअडेज इसीलिए हो रहा है ना क्योंकि क्लाइंट्स अभी पता चल रहा है उनको वास्तुशास्त्र क्या है करके, राइट। बट इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम पास्ट फ्यू डेज। अगर हम कोई भी राजे महाराजे जो होते हैं ना, हमारे किंग्स, जो पुराने किंग्स है, राइट, इफ वी विल चेक देयर प्रॉपर्टीज और इफ वी चेक देयर फोर्ट, जो उनके फोर्ट्स होते हैं ना, वो वास्तुशास्त्र एनेबल्ड होता है। कभी अगर हम उनका रिसर्च करें, उनके फोर्ट्स पे, उनके जो भी बनाए हुए किले हैं उन पे रिसर्च करें, सो यू विल कम टू नो कि वास्तुशास्त्र तभी से चलता आ रहा है। ओके, सी, यू आर इन पुणे राइट नाउ। Yes. आई एम गोइंग टू गिव यू वन वेरी इंपॉर्टेंट, आपने शनिवार वाड़ा देखा होगा। Yes. ओके, सो Yeah. व्हेन यू सी शनिवार वाड़ा, तो शनिवार वाड़ा जो सेंटर पोजीशन है वो पूरा वैकेंट है, हाँ. राइट। जो सेंटर पोजीशन है वो बहुत पहले से वैकेंट है, अगर उसकी पहले की फोटोज आप निकालेंगे तो वो वैकेंट दिखेगा। वैकेंट क्यों होता है ना, जो सेंटर पोजीशन वास्तुशास्त्र में कहा जाता है ब्रह्मस्थान। ओके, Okay. सो ब्रह्मस्थान शुड ऑलवेज बी कीप्ड वैकेंट, नंबर 1 थिंग। ओके, Okay. या तो फिर वहां पे वैकेंट नहीं रख सकते होंगे तो व्हाइट एनर्जीज का हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। सो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट नाउअडेज, इट वाज इम्पोर्टेंट फ्रॉम, एंड इट इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम। ओके, अब क्यों इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आप जो भी लोग वहां पे रह रहे हो, जो भी लोग वहां पे वर्क कर रहे हो, द पीपल हु आर वर्किंग ओवर देयर, द पीपल हु आर स्टेइंग ओवर देयर शुड लिव अ हेल्दी लाइफ, नंबर 1 थिंग, should live a wealthy life,
नंबर Sure. 2 थिंग, एंड थर्ड शुड बी अ हैप्पी लाइफ। मतलब सी यार, जरूरी नहीं है कि हेल्दी है वेल्दी है तो खुश भी है, Exactly. राइट? हेल्दी लोगों Right. को मैंने दुखी भी देखा हुआ है, वेल्दी लोगों को भी मैंने दुखी देखा हुआ है। सो व्हाट Exactly. एट द एंड ऑफ द डे इज इम्पोर्टेंट? हैप्पीनेस ऑफ अ पीपल। आई हैव सीन, मतलब जिनके पास बहुत सारा पैसा नहीं है उनको भी मैंने खुश देखा हुआ है, और जो Ye- बीमार रहते हैं उनको भी मैंने खुश देखा हुआ है। सो हैप्पीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हाउ वी कैन अचीव द हैप्पीनेस थ्रू आवर हेल्दी तो ठीक है, वेल्दी तो ठीक है, बट इन रिलेशंस आल्सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। रिलेशनशिप्स भी हमारे अच्छे रहने चाहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे सारे काम अच्छे से होने चाहिए, छोटा भी रहो या बड़ा भी रहो, सो वी विल लिव हैप्पी लाइफ फॉर श्योर, राइट? Oh, सो दैट yes. इज व्हाई वास्तु शास्त्र इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज, प्रतीक्षा। Yeah, sir. So the session is going very well, sir. So, sir, I want to know about some of your project, and can you explain your project with अच्छा, the use of Vastu Shastra? सी आई हैव वर्कड विद एनॉर्मस प्रोजेक्ट। मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के साथ में काम किया हुआ है, और मैं आज भी आपको बताना पसंद करूंगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। माई 90% क्लाइंट्स ऑलवेज डिमांड मी फॉर वैदिक वास्तु। Whenever Okay. I used to teach them about lecture antenna technique, feng shui antenna technique, pyramid technique, they said कि ये सब हमको नहीं पता, हमें वैदिक Mhm. वैदिक से ही जाना है। Okay, so my 90% to 95% clients are of Vedic. Even I have worked with a Maruti Kotex group, Patil's group actually, वो basically कोल्हापुर से है। सो 800 करोड़ का जो वैदिक वास्तु से मैंने प्रोजेक्ट किया था, इट वाज अ वेरी बिग प्रोजेक्ट, एंड वी वर्कड अ लॉट ऑन इट, है ना? तो वो अब तक का मेरे लाइफ का सबसे डिफिकल्ट प्रोजेक्ट रहा है। लेकिन कोई भी प्रोजेक्ट पे काम करने से पहले ना हमें उस चीज को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैं चाहता हूँ कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो इस सेशन से बहुत कुछ लेके जाए, राइट? तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना पसंद करूंगा, और ये जो मैं इमेज यूज करूंगा, आई विल सेंड इट टू यू, यू कैन शेयर इट टू योर ग्रुप आल्सो, एंड यू कैन शेयर इट टू योर अनदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आल्सो, है Sure, ना? sir. Sure. सी, जब वैदिक वास्तु का बात आता है, वेन एवर द टर्म वैदिक वास्तु विल कम इन फ्रंट ऑफ यू, योर स्टूडेंट शुड नो दिस बेसिक चार्ट। Okay. Okay, this chart have everything. Okay, this chart will have everything. अब कोई भी जब हम प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, सो दिस डायरेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 हाँ. एंड 9, इसको नहीं भूल सकते। ओके, Okay. सो दिस वन इज द सेंटर डायरेक्शन। तो 9 डायरेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी के लिए, इसी को थोड़ा सा सॉर्ट आउट करने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। दिस इज अ 9 ग्रह पिरामिड। ओके, अब Okay. ये जो है, ये 9 ग्रह पिरामिड आपको मैंने मेजर, जहां पे भी मैंने वास्तुशास्त्र किया होगा वहां पे ये आपको 9 ग्रह पिरामिड कहीं ना कहीं, आई एम नॉट गिविंग यू द प्रॉपर डायरेक्शन कि कहाँ इसको प्लेस करना चाहिए, बिकॉज वास्तु टू वास्तु वेरी करता है कि हमें एग्जैक्ट रिजल्ट्स प्रॉपर्टी में लाने कहाँ से है। तो वहां पे भी 9 ग्रह पिरामिड है, और यहाँ पे भी 9 डायरेक्शंस है, मतलब 9 पोजिशन है। ओके, तो ये जो 9 पोजिशन है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है द सेंटर वन। ओके, मैं चाहता हूं कि सारे स्टूडेंट प्लीज इसको नोट डाउन करें कि कोई भी वास्तुशास्त्र जब वो देखने जाएंगे तो सेंटर पोजीशन पे ज्यादा ध्यान रखिएगा। हम साउथ इंडियन मूवीज भी देखते हैं, तो साउथ इंडियन मूवीज में या फिर पुराने मराठी मूवीज में भी देखेंगे कि सेंटर हमेशा खाली होता है, वहां तुलसी का पौधा होता है, और आजू बाजू में फिर उनके रूम्स एंड ऑल होता है। Yeah. हाँ. ओके, बहुत मूवीज में देखे होंगे आपने। आपने शनिवार वाला मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, मूवीज का मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, बिकॉज इट इज अ ब्रह्म स्थान। ओके, मैं एनोटेशन दे रहा हूँ, जस्ट होल्ड ऑन, ताकि आपके स्टूडेंट्स को पहचानने में दिक्कत ना हो। ओके, सो अनोटेशन इज गिवन। अब यहाँ पे ये जो पोर्शन है, इट्स अ ब्रह्म स्थान, और ये व्हाइट कलर में डिनोट किया हुआ है। क्यों? उसके पीछे रीजन है, ब्रह्मदेव इज फॉन्ड ऑफ व्हाइट कलर, है ना? ब्रह्मदेव Okay. जो है वो हमेशा व्हाइट में ही आपको दिखेंगे, अगर आपने कुछ पुराने वैदिक सीरियल्स देखे होंगे, सो यू विल कम टू नो ही इज फॉन्ड ऑफ व्हाइट कलर। तो सेंटर में व्हाइट रखना यानी उनको थोड़ा सा इंप्रेस करना। ओके, इंप्रेस करेंगे तो रिजल्ट्स मिलेगा। हमें कोई भी काम निकलवाना हो तो इंप्रेस तो करना पड़ता है, दैट इज फॉर श्योर, Yeah, sure. राइट? तो इसको या तो ब्लैंक रखिएगा या तो व्हाइट रखिएगा, और आपकी जितनी भी इंपॉर्टेंट पूजाएं वगैरह होती है, ओके, जितनी भी इंपॉर्टेंट पूजाएं वगैरह होती है, इट शुड ऑलवेज बी हियर, है ना? Okay. क्योंकि यहां से एनर्जी स्कैटर होती है हमारे पूरे वास्तु की। Mhm. ओके, अब उसके बाद मैं जब यहाँ आ जाता हूँ तो ये है हमारा साउथ डायरेक्शन। ओके, साउथ डायरेक्शन इज गवर्न बाय मार्स, यमा, फायर, ऑब्लिक अर्थ, मतलब मंगल। मंगल का जो डायरेक्शन होता है वो साउथ डायरेक्शन होता है, या फिर यमा, यमा यानी यमराज, मतलब साउथ डायरेक्शन में कोई भी अगर हम अपने पितरों को पूजते हैं, पूजा करते हैं, तो साउथ डायरेक्शन में होता है। और यहाँ पे हम कौन से एलिमेंट्स को रख सकते हैं? तो फायर और अर्थ।
अर्थ मतलब हेवी। कोई भी पूछेगा आपके स्टूडेंट्स तो अर्थ क्या होता है, तो हेवी, याद रखिएगा, ठीक है। ओके। तो कोई भी फायर एलिमेंट हम साउथ डायरेक्शन में रख सकते हैं, मतलब अग्नि तत्व। ओके। तो आपके स्टूडेंट्स जब भी कोई क्लाइंट से डिस्कशन करेंगे तो वो उनको यहाँ पे बोलना है कि अग्नि तत्व हम साउथ में यूज कर सकते हैं। ओके। ओके। अब उसके बाद हम आ जाते हैं इस डायरेक्शन में, विच इज साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन इज गवर्न बाय राहु, नैऋत्य, नैऋत्य भी बोलते हैं उसको, और अर्थ एलिमेंट। अर्थ मतलब हेवी एलिमेंट। ओके, जैसे मैंने लोहा बोला था ना अपने सेशन में कुछ समय पहले, तो हैवी एलिमेंट हमें यहाँ पे जनरली प्लेस करना होता है। तो राहु, नैऋत्य और अर्थ एलिमेंट ये यहाँ पे स्टैब्लिश करना चाहिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। अब राहु का कलर कौन सा होता है, तो राहु को जनरली ब्राउन कलर सबसे ज्यादा प्लीज करता है, तो आपके इंटीरियर डिजाइनर्स यहाँ पे ब्राउन कलर को सबसे ज्यादा रख सकते हैं। ओके। ओके। सो दे कैन यूज द ब्राउन कलर ओवर हियर। अब ये जो साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच वाला पोर्शन होता है ना, इट इज गवर्न बाय केतु। हम्म। ओके। केतु, राहु और केतु का एक जो मिसकॉन्सेप्शन है, दे आर नॉट अ प्लैनेट। सी, अगर हम लोग स्पिरिचुअल चीज में बात करें तो उन्हें प्लैनेट्स कहा गया है, लेकिन व्हाट एग्जैक्टली राहु एंड केतु आर, दे आर द अपर नोड एंड द लोअर नोड फॉर्म बाय द ऑर्बिट ऑफ सन एंड मून ओके। रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। ओके। तो इसके ऊपर जब आप रिसर्च करेंगे ना, अपर नोड होता है और एक लोअर नोड होता है। ओके। तो हम्म। अपर नोड इज राहु एंड लोअर नोड इज केतु। ओके। सो बेसिकली दिस इज गवर्न बाय केतु। ये हम्म। चीज हमें ध्यान रखना है। और केतु का कलर कौन सा होता है, तो पेल ग्रीन हम ज्यादातर इस कॉर्नर में यूज कर सकते हैं। सो योर इंटीरियर डिजाइनर कैन यूज केतु ओवर हियर। ओके। ओके, मतलब पेल ग्रीन कलर ओवर हियर। अब हम्म। जैसे ही हम वेस्ट पे जाते हैं, वेस्ट पे यू विल सी सैटर्न, वरुण एंड अर्थ। अगेन हेवी एलिमेंट आ गए यहाँ पे। ओके। और वरुण बोला हुआ है, सैटर्न बोला हुआ है, तो सैटर्न का कलर कौन सा आ जाता है, जनरली ब्लैक आ जाता है, या फिर डार्क ब्लू आ जाता है, या वॉयलेट कलर आ जाता है। ये सारे सैटर्न के कलर्स है, तो ये यहाँ पे यूज कर सकते हैं। वरुण बोला गया है, इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वाटरी एलिमेंट को भी अच्छे से यूज कर सकते हैं। हम्म। ओके। वरुण बोला है इसीलिए, या फिर एयर एलिमेंट हम अच्छे से यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अर्थ, लेकिन वहां पे हेवी चीजें जो बहुत ज्यादा होनी चाहिए, मोस्ट ऑफ द टाइम हेवी चीजें क्या होती है कंस्ट्रक्शन में, क्या हो सकती है अगर हम कॉर्पोरेट में जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक किर्लोस्कर का कोई कॉर्पोरेट वास्तु आप देखने जा रहे हो, तो किर्लोस्कर का जनरेटर होता है बहुत बड़ा। हम्म। ओके। विच यस। इज रिलेटेड टू सैटर्न ऑल्सो एंड विच इज रिलेटेड टू अर्थ ऑल्सो। ओके। यस। कोई बोलता है कि हम कहाँ लगाए, बताइए वास्तुशास्त्र के हिसाब से। तो पहले आपके डिजाइनर, आपके सिविल इंजीनियर्स या आपके आर्किटेक्चर से बोलना बोलना चाहिए उन्होंने कि वेस्ट में रखता है बॉस। ओके। ओके। तो वेस्ट में रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जैसे ही हम यहाँ पे आ जाते हैं, तो ये हो जाता है हमारा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ वेस्ट वेस्ट को बोला जाता है वायव्य, मतलब वायु। तो हम्म। ये गवर्न होता है मून से, वायु से और एयर से। ओके। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जहां से एयर निकलने वाली चीजें होती है, एग्जॉस्ट जो बड़े होते हैं ना, जैसे कि कुछ हम एयरी आउटपुट दे रहे हैं या एयरी इनपुट ले रहे हैं, हाँ है ना। हाँ। एक कूलर बोलते हैं आपके टर्म में, कौन सा बोलते हैं जो हम लोग भेजते हैं जिसका एग्जॉस्ट आउटपुट निकलता एग्जॉस्टिव। है, एग्जॉस्ट बोलते हैं उसको, ठीक है। तो एग्जॉस्ट का आउटपुट अगर आप यहां से निकाल रहे हो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से, तो हम्म। उसमें कभी भी वो जो पर्टिकुलर वास्तु है, रेसिडेंशियल वास्तु हो गया या फिर कमर्शियल वास्तु हो गया, उनके पास में जो वेल्थ, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आज की डेट में, हम्म। उसमें कभी कभी नहीं आएगी, कभी कमी नहीं आएगी। ओके। दे विल हैव अबंडेंस, मतलब काफी अच्छा खासा वेल्थ को जनरेट कर लेंगे। ओके। ओके। अब दूसरा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये आ जाता है हमारा, विच इज सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्शन, दैट इज नॉर्थ। हम्म। ये तो हो गया, ये तो मैंने तो इसको इंपॉर्टेंट बोल ही दिया, फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। और वेल्दी, जिसको पैसा अच्छा खासा कमाना है, उनके लिए मैं नॉर्थ डायरेक्शन में बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ बेसिकली। वाई? बिकॉज इट इज गवर्न बाय कुबेर। कुबेर। ओके। यस। और इतिहास गवाह है, सबसे ज्यादा पैसा लक्ष्मी के बाद किसी के पास है, तो कुबेर। कुबेर के पास है। ओके। सो कुबेर, एंड इट इज गवर्न बाय मर्क्यूरी, एंड मर्क्यूरी का कलर है ग्रीन। तो जनरली ग्रीन की तरफ हम थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देंगे, इंटीरियर डिजाइनर्स यहाँ पे ग्रीन पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे। और यहाँ पे अगर कोई कुबेर, अगर किसी को कुबेर की आराधना अच्छी लगती होगी, तो वहां पे मर्क्यूरी, मतलब पारद के बने हुए, क्योंकि कैसा होता है ना, बुध का जो मर्क्यूरी, उनको मर्क्यूरीज बोला गया हुआ है। तो वो मर्क्यूरी का पारद, जिसको बोलते हैं, पारद के बने हुए कुबेर अगर वो स्थापित करते हैं वहां पे वेस्ट फेसिंग, ओके, ओके। तो उनके घर में फाइनेंशियल जो
आवक रहेगा, जो फाइनेंशियल इनकम रहेगा वो बहुत ज्यादा रहेगा, नो डाउट। ओके, मैं मेरे इसमें एग्जांपल में दे दूंगा। मैं आई जॉइन थ्रू माय सेल फोन एंड आई गिव यू वन एग्जांपल ओवर देयर, ठीक है? लाइव Sure. देखेंगे हम ये सारी चीजें। Yes, yes, yes. ओके, सो Yes, yes. मेरे वास्तु का मैं लाइव टूर भी कराऊंगा आपको। Sure, sir, sure. ओके, सो बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। Hmm. ओके, सो उसके बाद हम आ जाते हैं जुपिटर पे, दैट इज नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ये जुपिटर के लिए काम आता है, शिवा के लिए काम आता है और वाटर के लिए भी काम आता है। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोलता हूँ, यहाँ पे मेंशन नहीं की हुई, मेंशन कर दिया है यहाँ पे इनडायरेक्टली, शिवा लिखा हुआ है। शिवा Hmm. मतलब ईश्वर, मतलब Ishwar. ईशान्य। Hmm. ओके, तो जो सबसे ज्यादा फोकस रखता है ना लोग, वो ईशान्य पे रखते हैं, है ना? Okay. यहाँ पे आप वाटर एलिमेंट, ईशान्य पे हम वाटर एलिमेंट रख सकते हैं, नो डाउट। Hmm. ओके, अब ईशान्य पे हम वाटर एलिमेंट रखेंगे तो ऑब्वियसली हमारा जो पानी का सेटअप रहेगा, अंडरग्राउंड वाटर टैंक हो गया, है Yes. ना? ये Yes. ईशान्य में स्टैब्लिश होना चाहिए। नंबर 2 थिंग, अपर, ऊपर में जो हम पानी का टैंक लगा रहे हैं बहुत बड़ा, ये ईशान्य में होना चाहिए। मंदिर, घर का मंदिर जो है वो ईशान्य में होना चाहिए। Okay. Puja Ghar and all this. Yes. एग्जैक्टली, पूजा घर एंड Okay. ऑल दिस, ये हमारा ईशान्य में होना चाहिए। सो इससे क्या होता है ना, अगर कोई बोलता है कॉर्पोरेट में कि बॉस हमें थोड़ा सा मंदिर भी हमारे इसमें होना चाहिए, तो उसके प्रॉपर्टी का ईस्ट पकड़ के सबसे पहले उसमें वाटर टैंक ईशान्य में डाल देना और Hmm. उसके ऊपर में मंदिर स्टैब्लिश कर लेना। ओके, Hmm. प्रॉपर्टी का 80% वास्तु दोष वहीं पे खत्म हो गया। Okay. ओके, क्योंकि ईशान्य, ईश्वर को हम पूरा डेडिकेट कर रहे हैं वहां पे। Hmm. ओके, सो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब उसके बाद में हम आ जाते हैं ईस्ट फेसिंग में। ईस्ट इज गवर्न बाय, जैसे कि आपको पता ही होगा, इट्स वेरी सिंपल थिंग, सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, बराबर है? Yes. Sorry. तो Yes. यहाँ पे सूर्य Hmm. सूर्य देव जो है ये प्रस्थान करते हैं ईस्ट में, और ये Hmm. फायर एलिमेंट भी है। अगर कोई अग्नि का अगर प्रॉब्लम हमें सॉल्ट आउट करना है, हेल्थ रिलेटेड कोई इशू अगर हमें सॉर्ट आउट करना है, तो राइजिंग सन, Hmm. ओके, यहाँ पे इस्टेब्लिश करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। या फायरी एलिमेंट, फायरी एलिमेंट मतलब अग्नि तत्व कोई भी हो गया, जैसे कि कुछ हीटर लगा सकते हैं हम वहां पे, है ना? या हम Hmm. अपने इलेक्ट्रिसिटी का जो बॉक्स रहता है, इलेक्ट्रिक बॉक्स जिसे बोलते हैं, वो Hmm. हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब उसके बाद आ जाता है अग्नि, यानी फायर। अब इसको क्या बोला जाता है? अग्नेय कॉर्नर। ओके, तो जनरली अगर हाउसवाइफ में, मतलब हाउसवाइफ में कोई हेल्थ इश्यू ना हो, Hmm. ओके, या फिर घर की कोई बड़ी स्त्री है उनमें हेल्थ इश्यूज ना हो, या फिर फाइनेंशियल जो एक्सपेंसेस है वो ज्यादा ना हो, तो किचन यहाँ पे लगा देना चाहिए। Okay. ओके, क्योंकि अग्नि, किचन यानी क्या है? अग्नि, हम ज्यादा अग्नि वहां पे स्टैब्लिश कर रहे हैं, Hmm. गैस सिलेंडर वहां पे लग रहे हैं जो अग्नि तत्व है, फिर Hmm. से। तो अग्नि तत्व अगर हम वहां रख रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसका मतलब ये है कि किचन आ जाता है सबसे पहले दिमाग में। Hmm. ओके, सो अग्नि तत्व विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी किचन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे आना चाहिए। Okay. अंडरस्टूड? तो ये Yes. बेसिक चार्ट आप अपने स्टूडेंट्स के साथ में प्लीज शेयर कर दीजिएगा, विच विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। Sure, ओके, sir. Sure. इसमें पूरा वास्तुशास्त्र आ गया वैदिक का। अब मैं आ जाता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। या दिस वन, अनदर अनदर, मतलब जो उसके हिसाब से जो मैंने आपको बताया ना, एक एग्जांपल दे देता हूँ। ये एक Hmm. क्लाइंट का वर्क है जिसके ऊपर हमने काम किया था। ओके, Northeast. सी, Okay. यहाँ पे आ गया ब्रह्मस्थान फिर से, Hmm. द सेंटर ऑफ द बिल्डिंग। Hmm. ओके, दिस इज द सेंटर ऑफ द बिल्डिंग, यहाँ पे हमने वैकेंट रखा हुआ है। Hmm. ओके, एंड यू वोंट इमेजिन दैट दिस प्रोजेक्ट इज ऑफ 5 करोड़, Oh, great. इंडिपेंडेंट बंगलो, Okay. नॉट अ कॉर्पोरेट। अब इंडिपेंडेंट बंगलो, प्रोजेक्ट ऑफ 5 करोड़। अगेन एक चीज मैं आपको बताना पसंद करूंगा, द क्लाइंट वॉज मोमेडियन। Hmm. Oh. ओके, मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता है। आई हैव लॉट्स ऑफ क्लाइंट फ्रॉम एवरी कम्युनिटी। ओके, क्योंकि मैं Okay. हमेशा ये प्रूव कर दिया हूँ कि इट्स अ साइंस। ओके, सो Hmm. सारे हम लोग मिलके रहते हैं, और सारे मतलब वी टुक आउट लॉट्स ऑफ आउटपुट फ्रॉम ईच एंड एवरीवन। Hmm. ओके, Hmm. सो आप विश्वास अब कर सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट होता है Hmm. वास्तुशास्त्र किसी के Yes. लिए। ओके, Yes. सो ये ब्रह्म स्थान है। Hmm. ओके, इसको हम लोगों ने सेंटर में लॉक करके रखा था। Hmm. ओके, अब उसके बाद में ये डायरेक्शन है ईस्ट। Hmm. इस डायरेक्शन में वी वर्कड ऑन लिविंग रूम, ऑफिस एंड गार्डन। ओके, अब ईस्ट में क्या आ जाता है? सन, इंद्र Sun. एंड फायर एलिमेंट, Hmm. लिविंग, ऑफिस एंड गार्डन।
अब गार्डन हम लोगों ने यहाँ पे फायर एलिमेंट में हमें फायर आउटपुट सबसे ज्यादा निकालना था, इसीलिए हमने ऑफिस यूज किया हुआ है, और ऑफिस में हम लोगों ने एक अग्नि का सेटअप किया हुआ था। ओके। ओके, विच इज ऑफिस अ में। डिजाइनर। ओके। ऑफिस में हम लोगों ने क्या किया हुआ था, आपको ये पता होगा कि एक अरोमा लाइट आता है, अरोमा लैंप आता है। हाँ। अरोमा लैंप हमने एक अट्रैक्टिव अरोमा लैंप ऑफिस में सेटअप किया था। अच्छा। ओके, लेकिन अब नॉर्मल वास्तुशास्त्र में आप इसे लिविंग रूम में भी रख सकते हो, गार्डन में भी रख सकते हो। ओके। ओके, इस डायरेक्शन में। अब ये है सबसे इंपॉर्टेंट, ये चीज क्लियर हो गई आपको। अब ये आ जाता है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में मैंने क्या बोला था आपको? अग्नि फायर। विनस। अग्निफायर, एग्जैक्टली। यस। तो हम क्या यूज कर सकते हैं मेजरली? पहले तो किचन। किचन, यस। या दूसरा ऑफिस। ऑफिस। यहाँ पे किचन या ऑफिस का इस्टेब्लिश हम लोग कर सकते हैं। अब ये सेंटर्स को हम लोग छोड़ देते बिकॉज ये बहुत ज्यादा डीप हो जाएगा। सो यहाँ पे आ जाता हूं मैं सीधा साउथ की तरफ। साउथ की तरफ बेडरूम, किचन एंड स्टेयरकेस, ये यूज कर सकते हैं। अब SSE यानी साउथ ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, ओके, इसमें हम किचन और बेडरूम इस्टेब्लिश कर सकते हैं। और यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, ये चार्ट भी आप तक आ जाएगा। जो भी आपके स्टूडेंट आएंगे ना, आप सोच रहे होंगे कि इतना सारा कैसे याद रखे, इतना सारा कैसा लिखे। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, ये चार्ट भी आ जाएगा। सो दिस इज द बेसिक थिंग। ओके, ओके ओके सो ओके सर। किचन एंड बेडरूम यहाँ पे आ जाएगा। देन साउथ डायरेक्शन में बेडरूम, किचन और स्टेयरकेस हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं। देन साउथ ईस्ट ऑफ द साउथ वेस्ट में हम क्या कर सकते हैं? टॉयलेट वेस्ट। टॉयलेट, वेस्ट बीन और स्टेयरकेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेस्ट बीन कहाँ रखे। बहुत लोगों का सवाल आएगा वेस्ट बीन और टॉयलेट। सबसे ज्यादा यही सवाल आएगा आपको, टॉयलेट, वेयर शुड वी इस्टेब्लिश टॉयलेट? तो साउथ ईस्ट ऑफ द साउथ वेस्ट। ओके। ओके, तो यहाँ टॉयलेट का इस्टेब्लिशमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड देन हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, दैट इज साउथ मस्त। वेस्ट, मास्टर बेडरूम। बस ये है स्टार। ओके, इसको ओके। एस्ट्रिक करके रख देना है आपके सारे स्टूडेंट ने। मास्टर बेडरूम में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मास्टर बेडरूम हमें हमारे प्रॉपर्टी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो उसका इस्टेब्लिशमेंट हमेशा साउथ वेस्ट में होना चाहिए। ओके। ओके, क्यों साउथ वेस्ट में होना चाहिए? क्योंकि मैंने इसको अर्थ एलिमेंट बोला है, हेवी चीज। मैं आपको जब लाइव वास्तु दिखाऊंगा मेरा, सो मैक्सिमम चीजें वहीं पे क्लियर हो जाएगी। ओके ओके, ओके। सो मास्टर बेडरूम हो जाता है साउथ वेस्ट में। अब वेस्टेस्ट ऑफ द साउथ वेस्ट में क्या होना चाहिए? स्टडी रूम स्टडी रूम। एंड किड्स रूम। मतलब बच्चों की जो रूम है वो बराबर वेस्टेस्ट ऑफ द साउथ वेस्ट में होनी चाहिए। ओके, अब वेस्ट में क्या होना चाहिए? तो बेडरूम, डाइनिंग एंड ऑफिस। अब किसी किसी का जो प्रॉपर्टी होता है ना वो छोटा हो जाता है, तो क्या करना, साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम बना लेना, वेस्ट में बेडरूम बना लेना, बस। ओके, इस पे ध्यान मत देना। बच्चों के लिए हमारे पास में इतना स्पेस नहीं होता है एक मिडिल क्लास फैमिली में कि इतना सब कुछ यूज कर सके। ये प्रोजेक्ट बड़ा था, इसीलिए हमने इस टेक्निक को यूज किया था। तो छोटे टेक्निक में हम लोग क्या करेंगे ना, सिर्फ मैं जो 9 डायरेक्शंस के बारे में बोला ना, बस वो 9 डायरेक्शंस पे ही काम करेंगे। ओके लेकिन बड़े प्रोजेक्ट भी आएंगे आपके पास में, आपके स्टूडेंट्स के पास में, फॉर श्योर, है ना? ओके ओके तो सर। उसके लिए ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस यस। अब आ जाता है वेस्टेस्ट ऑफ द वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट। तो इसमें आएगा टॉयलेट, वेस्ट बिन और स्टेयरकेस। अगेन सेम एज साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट। एग्जैक्टली, वेरी गुड। अब नॉर्थ वेस्ट में क्या आ जाएगा? गेस्ट रूम आ जाएगा और किचन आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे आ जाएगा गेस्ट रूम और किचन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे गेस्ट आ रहे हैं, मतलब हमारा लिविंग एरिया जिसको हम बोल सकते हैं। तो लिविंग यहाँ पे आएगा। अब पैसा वास्तु, मतलब जो घर बनाने में ज्यादा खर्च करने को तैयार है, प्रॉपर्टी का स्क्वायर फीट बहुत बड़ा है, डायमेंशन बड़ा है, तो नॉर्थ ऑफ द नॉर्थ वेस्ट में न्यूली मैरिड कपल्स का बेडरूम डाल सकते हैं। ओके ओके, ताकि उनके रिलेशंस काफी अच्छे से मेंटेन रहे। ओके, अब नॉर्थ डायरेक्शन में लिविंग रूम, जनरली नॉर्थ में ही रख लेना अपना लिविंग रूम, ऑफिस और कैश लॉकर, ये सारा नॉर्थ में ही होना चाहिए। यस यस। ओके, अब मैंने कुबेर आपको प्लेस। एग्जैक्टली नॉर्थ में कैश लॉकर इसीलिए वहां पे आ गया, राइट? अब आ गए हम लोग ये दो इंपॉर्टेंट जगह पे। ओके, ये दो इंपॉर्टेंट जगह इसीलिए क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर टैंक, जैसा मैंने आपको बोला था, अंडरग्राउंड वाटर टैंक यहाँ पे आ गया। ओके, दैट इज नॉर्थन ऑफ द नॉर्थ वेस्ट। और यहाँ पे आ गया प्रेयर रूम, यानी ईशान्य। तो ईशान्य। यस, वाटर टैंक, और अगर मंदिर के बीच में हमारे पास में जगह बहुत होंगी तो पहले वाटर टैंक आएगा फिर मंदिर आएगा।
अच्छा। ओके, लेकिन जगह नहीं है तो वाटर टैंक भी बना लो और उसके ऊपर में मंदिर का भी सेटअप कर लो, अपना मैक्सिमम काम हो जाएगा। ओके। ओके, सो कैन वी हैव अ लाइव विजिट ऑफ माय वास्तु राइट नाउ? या श्योर सर। सी सो राइट नाउ आई एम हियर, और मैं आ गया हूँ अपने जो अपना जो होम है वहां पे। नाउ आई एम स्विचिंग ऑन द कैमरा, लाइक मैं कैमरा स्विच ऑन कर रहा हूँ पीछे का। सो दिस इज माय होम सेटअप एक्चुअली। ये ऑफिस का बोर्ड है जो यहाँ पे रखा हुआ है। एंड जैसे कि मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, सी दिस इज माय वास्तु। अब मेरे वास्तु में आप ये देखेंगे कि ये ईशान्य है, दिस वन इज ईशान्य। ओके, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, यू विल फाइंड आउट द वाटर टैंक ओवर हियर। ओके, वाटर टैंक यूज कर लिया मैंने, मतलब जो मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हो गया। अब यहाँ पे कुछ टाइम में वी आर सेटअप, वी विल हैव अ सेटअप ऑफ शिवलिंग। यहाँ पे हम लोग शिवलिंग का सेटअप करेंगे इन फ्यूचर, बट करंटली हम लोगों ने इसको सिर्फ वाटर टैंक के लिए यूज किया हुआ, बिकॉज वाटर टैंक यानी लक्ष्मी का भी स्वरूप होता है। ओके, सो यहाँ पे आ जाता है। अब मैं नॉर्थ फेसिंग भी रख सकता था, सी ये है मेरा नॉर्थ। ओके, मैं नॉर्थ फेसिंग रख सकता था, लेकिन मैंने डोर को वेस्ट की तरफ किया हुआ है, क्योंकि मुझे नॉर्थ सिर्फ और सिर्फ कुबेर के लिए यूज करना था। अच्छा। ओके, तो मैंने इसको कुबेर के लिए यूज किया हुआ है। सो व्हेन यू विल एंटर ओवर हियर, ये दिस वन इज माय हाउस, वेस्ट एंट्रेंस है। वेस्ट एंट्रेंस होने के बाद में ये है नॉर्थ, दिस इज द नॉर्थ डायरेक्शन। ओके, अब जैसा मैंने बोला था कि कोई अगर कुबेर को प्लीज करने चाहते होंगे तो यहाँ पे पारत का कुबेर रखे, या फिर एक मेरा सेटअप होता है, वो सेटअप में मैंने टॉर्टोइज रखे हुए हैं पारत के महादेव। यस, पारत के कुबेर जी यहाँ पे थे, जो कि आज अभिमंत्रित करने के लिए रखे हुए हैं, और यहाँ पे स्फटिक श्री यंत्र रखा हुआ है। तो ये सेटअप मैंने बनाया हुआ है। ओके, सो दिस वन इज द टेबल जहाँ पे हमारा अभी डिस्कशन चल रहा था, नो डाउट। ओके, अब अग्नि एलिमेंट मैंने जैसा बोला था, ये है प्रॉपर्टी का अग्नि एलिमेंट। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी का नहीं, एक्चुअली ये रूम का है, और मुझे यहाँ सेटअप करवाना था अग्नि एलिमेंट। ओके। ओके, तो अग्नि एलिमेंट तो यहाँ पे इस्टेब्लिश हो गया है। नाउ जैसे मैं आता हूँ अपने रूम के तरफ अंदर में, ओके जस्ट होल्ड ऑन। अब ये मेरा है रूम, पूजा घर। ओके, अब ये पूजा घर है। अब ये पर्टिकुलर रूम का ये ईशान्य हो गया, सी ये पूजा घर और ये किचन है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो ये ईशान्य हो जाता है। अब ईशान्य में आ गया पूजा घर, नो डाउट, क्योंकि ईश्वर को डेडिकेट रखना था, सो इट्स ईशान्य। अब जब मैं यहाँ पे आ जाता हूं तो ये हो जाता है अग्नेय। ओके। ओके, तो अग्नेय स्टैंड्स फॉर अग्नि। तो ये पूरा किचन का सेटअप है, और यहाँ पे है गैस, विच इज अनदर अग्नि तत्व। ओके, अब साउथ वेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी में मैं आ जाता हूं, तो साउथ वेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी में दिस वन इज मास्टर बेडरूम। ओके, दिस वन इज मास्टर बेडरूम। अब ये घर का ब्रह्म स्थान है। ओके। अब इसमें क्या देख रहे हैं आप? ओपन स्पेस। ओपन स्पेस मैंने पूरा रखा हुआ है। ओपन स्पेस मैंने रखा हुआ है इसीलिए क्योंकि ताकि यहाँ पे पूजा वगैरह होती है, ये सारे स्पेस में पूजा होती है। ओके, अब ये आ जाता है, ये एक तो नॉर्मल सेटअप मैंने किया हुआ था जस्ट, और ये है बेडरूम, नॉर्मल बेडरूम जो मैंने डिस्कस किया हुआ था, राइट। अगर नहीं होगा तो इधर में मास्टर बेडरूम रख लीजिएगा और इधर में सादा बेडरूम रख लीजिएगा। सो इधर में एक दूसरा बेडरूम है। सो इस तरह से ये पूरा प्रॉपर्टी हो जाता है, विच इज टोटली वास्तु एनेबल्ड। Okay. Yeah, I hope I'm audible now. Yeah, you're audible. Yes. Yes. Okay, fine. So मैंने एक लाइव टूर मेरे ही प्रॉपर्टी का आपको दे दिया, विच इज टोटली वास्तुशास्त्र एनेबल्ड। ओके, जहां पे मुझे ईशान्य रखना था मैंने वहां पे ईश्वर रखा, जहां पे मुझे वायु रखना था मैंने वायु रखा, जहां पे मुझे हाँ वायु मतलब मैंने बाहर आपको दिखा दिया, वहां पे मैंने पेड़ को एस्टेब्लिश किए हुए है ना। पेड़ क्यों? ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, दैट्स व्हाई। वायु प्रोवाइड करता है, इट इज वायु एलिमेंट, राइट, वेरी गुड। तो ये वायु एलिमेंट होने की वजह से मैंने वायु को वहां पे एस्टेब्लिश किया हुआ है। ये और बहुत छोटी छोटी चीजें थी जो वास्तुशास्त्र के हिसाब से मैंने प्रॉपर्टी में की हुई है। अगर आप प्रॉपर्टी विजिट भी कभी करेंगे सो आई विल टेल यू कि मैंने कोई कलर को यूज किया हुआ है वहां पे, राइट। और इवन मैंने बहुत सारे स्टोन्स, ऑलमोस्ट आप सोच सकते होंगे कि आई हैव इन्वेस्टेड टू मच। प्रॉपर्टी पे तो हुआ ही है, लेकिन बाकी वास्तुशास्त्र पे भी आई हैव इन्वेस्टेड टू मच,
because I know the benefits of Vastu Shastra. ओके सो एज यू सेड कि कलर कॉम्बिनेशन भी मस्ट है, मतलब जैसे कि आपने बताया कि केतु मतलब जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है वहां पे आप ब्राउन कलर यूज कर सकते हो, देन वेस्ट डायरेक्शन में डार्क ब्लू कलर यूज कर सकते हो। तो इंटीरियर में कलर कॉम्बिनेशन तो एक्चुअली विटाल रोल प्ले करते हैं इंटीरियर में कलर कॉम्बिनेशन। Right. तो Very good. जो आपने बताया कलर्स वो एक्चुअली आप मतलब वास्तु को आप क्या आपके क्लाइंट ये फॉलो करते हैं ये सब कलर कॉम्बिनेशन एंड ऑल? Because Most of dark the blue time, color हाँ. and brown Yeah. color. एग्जैक्टली Yes. थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन में प्रॉब्लम आता है ना, तो ऐसे टाइम पे मैं क्या सजेस्ट करता हूँ, तो ऐसी सिचुएशन में मैं ये एडवाइस करता हूँ कि अगर हम कलर्स को यूज नहीं कर पा रहे हैं फॉर एग्जांपल कहीं पे भी, तो हम देखते हैं कि कौन सा एलिमेंट ये हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है फॉर एग्जांपल। ठीक है, अभी जैसे मैंने साउथ में बोला, साउथ में हम लोग रेड कलर नहीं लगा सकते हैं, है Okay. ना। साउथ में कुछ इंटीरियर डिजाइनिंग का कॉन्सेप्ट हो गया, कुछ क्लाइंट्स ने बोला होगा कि वी विल नॉट यूज रेड कलर, तो मैं वहां पे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग रेड जैस्पर का पिरामिड एस्टैब्लिश करें, रेड जैस्पर। ओके, रेड जैस्पर के पिरामिड का सेटअप करेंगे विच इज वेरी स्मॉल इन साइज, या तो फिर रेड जैस्पर पिरामिड अगर एस्टैब्लिश नहीं कर सकते होंगे तो साउथ डायरेक्शन में स्टोन्स जो होते हैं ना, स्टोन्स रखने के लिए एक जगह बनाई जाए छोटा सा लैच टाइप में, या कुछ लैच वगैरह, जैसे मैंने वहां पे लैच लगाया हुआ है। ओके, तो लैच टाइप कुछ सेटअप बना के रेड कार्नेलियन के जो छोटे छोटे टम्बल स्टोन हो सकते हैं ना, वहां पे वो रखे जाए, तो वो उसको एलिमिनेट कर दे। मैं पहला तो पिरामिड बोलूंगा, या और दूसरा है रेड टम्बल स्टोन, बट तोड़ फोड़ करने की या फिर कलरिंग वापस करने की जरूरत नहीं है। Okay. यस। I must say, Mahesh sir, every day we interview about couple of experts on various subjects, but by far this is one of the most enthusiastic and one of the most subject depth that you have showcased today is amazing. थैंक यू, So थैंक यू one, सो मच। yeah, so there are a couple of questions in my mind, and Hmm. I am also a student of Vastu Shastra. So because directions are so important in Vastu, for a novice like me, for a beginner like me, I was first like to understand how do you establish the direction? Let's say, for example, I'm sitting in my office. So when Hmm. I am seeing outside the door, so how do I establish the Hmm. direction? Is it that where I'm standing, I'm looking outside, or is it that when I am facing Hmm. inside the office? So how do you establish No, this direction? yes, What is we the just point have of to take care orientation? that Orientation. exactly, sir. We should consider ourselves as a center. Okay, then हम जो sir, basically the compass I use is Compass 360. Okay, so when Okay. you open the app Compass 360, आप अपने cell phone में you should have Compass 360, and when you will open the app, we have to like keep our mobile like this. Okay, the straight, Hmm. and that compass will give us a direction. This one is east, this one is for example south, this one Huh. is west, this one is north. ये जो डायरेक्शन देगा वो कंपास ही देगा, एंड वी हैव टू फॉलो दैट डायरेक्शंस ओनली। But what is the point of view? What is the orientation? Let's say, for example, I want to establish my entry. Yeah, entry. If I am correct, it has to be established in the eastern side. So is it that when I'm facing outside the door, or whether my point of view is from इनसाइड, outside? So whether इनसाइड, it's from इनसाइड, inside, or so it is from inside that we have to from see. inside, exactly, from inside, because we are considering our vastu from inside. Okay, Okay. okay. Yes, So I have to stand inside. I have to utilize this app called as 360 compass compass, 360, compass exactly. 360, and then Yeah. whatever direction it shows, it says. So when we begin our Vastu, what is the first step that we do, sir? Sir, first of all, once we will take out the plan as per our normal Vedic Vastu. Okay. The Huh. first step, whenever client approaches, like client approach me, what I used to do, I used to take the chart first from the Vastu consultant. And in most of the cases, what actually is happening, sir, 90% chart are already Vastu enabled. Architectures are doing well, civil engineers are doing well, no doubt. So most of the time, it's like 90% time it's Vastu enabled. So I just have to take care that what changes we have to make. So once we will receive the plan, we have to divide it into the directions, the 9 important directions. Okay. Then we have to check whether in southeast direction, like as I said, it is related to Agni. So no watery element should be there. I have seen this mistake in most of the plans.
toilet or latrine bathrooms are there in southeast direction. Okay, Oh, so we okay. have to remove that one from there. Okay, because it's very in depth. It's a fiery element, Agni Tattva जिसको कहा गया है. Okay, Agni, correct. but Yeah. what we are doing, we are using watery element over there. Okay. है ना? Okay. तो उसको वहां से निकाल के we have to shift toward the chart. जो मैंने चार्ट दिखाया था, बस वो चार्ट में कहीं फिट हो रहा है क्या टॉयलेट. Okay, and then we have to tell this suggestion to our clients कि go to your architecture again or go to your civil engineer or interior designer again. आप वापस उनके पास में जाइए and do these changes. Okay, और वो चेंजेस करने के बाद जो सारे चेंजेस है एक चार्ट में अगर वो बैठ गया, जैसे वी हैव टू टेक केयर कि प्रॉपर्टी कितना बड़ा है, बजट कितना बड़ा है. अगर प्रॉपर्टी बड़ा है तो फिर हम सेकंड चार्ट यूज करेंगे, और प्रॉपर्टी छोटा है तो हम फर्स्ट चार्ट यूज करेंगे. तो अगर फर्स्ट चार्ट Okay. में बैठ रहा होगा तो उसको फर्स्ट चार्ट के हिसाब से मैच करेंगे, नहीं तो हम सेकंड चार्ट के हिसाब से मैच करेंगे. ओके, और फिर चेंजेस करके जब वो हमारे पास में वापस आते हैं, देन वी यूज टू अप्रूव द डिजाइन. में मेरा अप्रूवल का स्टैम्प होता है एक्चुअली, महेश मानकर, अप्रूव्ड बाय महेश मानकर सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर, एक ऐसा स्टैम्प दिया हुआ है, मैं वो स्टैम्प अप्रूव कर देता हूँ, वास्तु जो चार्ट है वो अप्रूव कर देता हूँ. Okay, so our first step is to take out the plan normal as per Vedic Vastu and then again compare it with the first chart. अगर छोटा प्रोजेक्ट है, सेकंड चार्ट अगर बड़ा प्रोजेक्ट है. If yes, then we can approve. अब उसके बाद में आ जाता है सेकंड स्टेप. जब घर बनना शुरू हो जाता है तो सेकंड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना शुरू कर देते हैं इंटीरियर डिजाइनर, जैसे मैम ने बोला. तो इंटीरियर डिजाइनर में मुझे वो लिख के देना पड़ता है कि हम ये कलर यूज करेंगे. लेकिन अगर हम कलर्स यूज नहीं कर पा रहे हैं तो प्लैनेट और तत्व कौन सा डैमेज हो रहा है वो हमें देखना है. और जो प्लैनेट और तत्व हम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो उस तत्व का बना हुआ क्रिस्टल प्रोडक्ट या फिर जेमस्टोन प्रोडक्ट, नॉर्मली क्रिस्टल प्रोडक्ट से काम हो जाता है विच इज नॉट टू कॉस्टली, उसका एक तो पिरामिड एस्टेब्लिश किया जाए, वहां पे पिरामिड रख देंगे, या फिर उसके टम्बल स्टोन आता है. आई विल गिव यू द एग्जांपल ऑफ पिरामिड आल्सो एंड टम्बल स्टोन आल्सो. सो लेट मी चेक वेदर इट इज हियर और नॉट. सो ये तो एक नवग्रह पिरामिड विच आई शोड अर्लियर. ओके, अब ये रेड जैस्पर है, यहाँ पे नवग्रह में रेड जैस्पर है. ओके, अब मैं साउथ में अगर रेड कलर नहीं दे सकता हूँ ड्यू टू सम ऑफ द इश्यूज, किसी को पसंद आता है किसी को नहीं आता है ना. तो ये एक छोटा सा पिरामिड, इसका थोड़ा बड़ा वर्जन रहेगा. ये पिरामिड हम लोग इस्टेब्लिश करेंगे टू द साउथ डायरेक्शन. ओके, अब ये हो गया रेड जैस्पर. अगर रेड जैस्पर यूज नहीं कर पाए, अगर थोड़ा सा लग रहा है कि रेड जैस्पर थोड़ा कॉस्टली जा रहा है, ये रेड कार्नेलियन टम्बल स्टोन है. ओके, तो ये रेड कार्नेलियन टम्बल स्टोन आधा किलो तो भी हम लोग एटलीस्ट वहां पे रख सके उस डायरेक्शन में. तो फिर वो रेड कलर अगर हमने यूज नहीं किया ना तो इससे मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं जो साउथ डायरेक्शन से आने वाले हैं. What is the significance of this shape pyramid? Why pyramid? सर, अगर हम पिरामिड का या फिर अपने मंदिर का भी सेटअप देखते हैं ना, या फिर मस्जिद का भी सेटअप देखते हैं, या फिर चर्च का भी सेटअप देखते हैं, तो ऊपर से सर एक पॉइंट होता है, मिलता है ना. Okay. ऐसा होता है, एक पॉइंट मिलता है. तो वो पॉइंट पे क्या होता है ना, एनर्जीज आती है, अब्जॉर्प्शन ऑफ द एनर्जीज. और वो एनर्जीज क्या करती है ना, ऐसे डाउन साइड में स्कैटर करती है. ओके, और फिर जब वो बेस बन जाता है ना तो वो बेस पे सारी एनर्जीज फ्लोट होना शुरू हो जाती है. ओके, सो पिरामिड्स और जो हमारे मंदिर के ऊपर में लगे हुए जो सेटअप्स है, अरेंजमेंट है, वो बने इसीलिए हुए ताकि पूरे एनर्जीज को एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट करके ऊपर से कॉन्सेंट्रेट करके पूरे वास्तु में स्प्रेड कर सके. So it is a pretty top-down arrangement. Oh, that is Exactly. great. That's Exactly. absolutely. Sir, since the starting of today's interaction, you have been mentioning about the first word that you mentioned, and in your definition as well, it was a wonderful definition. You kept talking about the energies. So can you give me some examples of energies? एग्जैक्टली सर. अब एनर्जीज में मैंने दो चीजें मेंशन की हुई थी. सबसे पहला तो है एक पिरामिड वास्तु मैंने यूज किया हुआ था एनर्जीज में, और दूसरा है वैदिक. ठीक है, अब एक वैदिक का एग्जांपल देते हैं सर. अब हमारे टर्म में बोला जाता है कि मैक्सिमम वास्तु जो है वो ईस्ट फेसिंग रहेंगे तो ज्यादा बेनिफिट देते हैं, है ना. अब ईस्ट से आने वाली एनर्जी होती है वो होती है सूरज की, दैट इज सन. ओके, अब सन का जो सिग्निफिकेंट जो क्वालिटी बोल सकते हैं या सिग्निफिकेंट जो टर्म बोल सकते हैं, सन इज गिविंग अस एनर्जी, है ना. तो अगर ईस्ट फेसिंग हमारा वास्तु रहा, ईस्ट से हमारा डोर रहा, और सब जब सन आ रहा है ना, तो सन की जो सबसे पहली किरण है वो हमारे घर के अंदर में आनी चाहिए.
इससे अच्छा प्रॉफिट क्या हो गया, सन एनर्जी को यूज करके एक तो हमारे घर में हेल्थ काफी अच्छा रहेगा। ओके, क्योंकि विटामिन डी की डेफिशिएंसी कोई भी घर के व्यक्ति में नहीं जाएगी। ओके, विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं जाएगी, मतलब एनर्जीज अच्छी खासी मेंटेन रहेगी बॉडी की। और दूसरा सर, जब सन का एनर्जी आता है ना, तो हमारे घर में रात भर में जो कीटाणु या फिर विषाणु या फिर जीव जंतु जो होते हैं ना, वो सन की एनर्जी से मर जाते हैं सर, विच इज अगेन गुड फॉर अवर हेल्थ। तो इसीलिए ये बोला जाता है कि ईस्ट फेसिंग वास्तु इज ऑलवेज गुड, क्योंकि हम सन की एनर्जीज को यूज कर रहे हैं। ऐसा एवरी 9 डायरेक्शन हैव सम एनर्जी। साउथ में जैसे मंगल की एनर्जीज आ रही है, तो मंगल की एनर्जीज को हमें रोकना होता है। ओके, नहीं तो ब्लड रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। बिकॉज सर, हम मार्स में अगर हम नेचुरल क्वालिटी देखें, साइंटिफिकली भी देखें, तो मार्स की पोजीशन जब चेंज होती है ना, तो बॉडी के खून के उबाल में चेंजेस हमें नोटिस होंगे। ओके, तो हाँ हमें वो उबाल नहीं चाहिए, हमें बीपी हम्म नहीं चाहिए, तो इसीलिए हम साउथ में रोक देते हैं, है ना। अगर ओके किसी का एंट्रेंस साउथ की तरफ होगा, है ना, अभी हम तोड़ नहीं सकते सर, साउथ की तरफ से डायरेक्शन है, पूरा घर वापस नहीं बना सकते होंगे। इसीलिए सर, आज बहुत सारे लोग वास्तु, पहले ही वास्तु इसीलिए बोल देते कि बाद में तोड़फोड़ ना करना पड़े, यस है ना। यस तो यस अगर साउथ की तरफ कुछ प्रॉब्लम होगा ना, सो आई विल रेकमेंड कि आप अपने दरवाजे के ऊपर पहले ये पाकुआ मिरर रख ले। पाकुआ, इसको पाकुआ भी बोलते हैं या बगुआ भी बोलते हैं कुछ लोग, बगुआ BAGUA, या बगुआ या फिर पाकुआ मिरर। ये क्या करता है सर, बगुआ और या पाकुआ मिरर? सर, ये चाइनीज मिरर है और ये एनर्जीज को रिफ्लेक्ट करता है सर। इसमें जो यूज हुआ है रेड कलर और येलो कलर, विच सिग्निफिकेंटली डिराइव्ड कि रेड कलर और येलो कलर को रिफ्लेक्ट करेगा। सेंटर वाला जो मिरर होता है, और मिरर की जो नेचुरल क्वालिटी होता है लाइट को वापस भेजना, तो ये एनर्जीज को वापस भेजने का काम करता है। ओके ओके, सो इस चीज को हमें यूज करना चाहिए। और जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम बोलते हैं सर, लाइक बहुत सारे क्लाइंट्स जो होते हैं या बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं इस चीज में, वास्तुशास्त्र से रिजल्ट्स मिलेंगे क्या, है ना। ये सबसे पहला सवाल आ जाता है। तो मैं एक ही चीज बोलता हूँ, नहीं करने से मिलेंगे क्या। राइट, उससे अच्छा करके देख लेते हैं। नहीं करने से वैसे भी कुछ होने वाला नहीं है सर, सो इट्स बेटर टू फॉलो, ताकि आगे जाके हमें रिग्रेट ना हो कभी लाइफ में कि हमने इस चीज को फॉलो नहीं किया। so what I make out of your conversation is कि आगे जाके एक प्रीमाइस को तोड़ना, उसको रीमॉडिफाई करना इज एक्सपेंसिव एंड इट्स डिफिकल्ट एज वेल, इट इज chaotic. So it is हम्म better that our architects and budding interior designers know the हम्म knowledge of Vastu Shastra initially, even in the हम्म design phase itself, in the pre-construction phase itself. तो बाद में जाके फिर एग्जैक्टली, क्लाइंट को दिक्कतें ना आए. Great. दिक्कतें ना है। ग्रेट सर, Very राइट। amazing. Another thing which I want to ask is, sir, when we read about Vastu Shastra, there are three different aspects to it. One is हम्म about the plots. The हम्म other is about residences. Yeah, so when you're एग्जैक्टली। purchasing a plot, I think experts like you give a lot of narration to the client at how the plot selection should be done. Can you talk about एग्जैक्टली, Vastu Shastra from the aspect of plot selection? वेरी गुड Can you just क्वेश्चन give सर। a brief? एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पहला स्टेप तो प्लॉट सिलेक्शन से आ जाता है, राइट। Okay. मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्लॉट सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वैदिक में हम लोग एक ही चीज का ध्यान दें कि साउथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट अगर प्रॉपर्टी मिल रही है, कॉर्नर प्रॉपर्टी, तो आंख बंद करके उसको ले लीजिए। नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, है Northeast ना। corner. इफ नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर इज नॉट पॉसिबल, कंसिडर सेकंड ईस्ट फेसिंग प्लॉट लेना चाहिए। ओके, नॉर्थ ईस्ट प्लॉट में वास्तुशास्त्र इतना अच्छा काम रोल प्ले करेगा, एंड यू कैन सी जितने भी अपने यहाँ पे बंगलोज बने होंगे नॉर्थ ईस्ट में, दे आर ग्रोइंग। मतलब इफ यू विल नो कि उनका फाइनेंशियल पोजीशन काफी अच्छा ग्रो कर रहा है। बट इफ नॉट ईस्ट फेसिंग तो होना ही चाहिए। इफ नॉट ईस्ट फेसिंग, तो थर्ड वन इज नॉर्थ फेसिंग। ओके, अब इसके बाद में ईस्ट नहीं हो तो नॉर्थ होना चाहिए, और नॉर्थ नहीं हो रहा है तो वेस्ट फेसिंग, और अगर वेस्ट भी Okay. नहीं हो रहा होगा तो फिर दूसरी जगह जाओ, पर साउथ फेसिंग मत लेना प्लीज। अच्छा अच्छा. ओके, और So, अगर but साउथ when फेसिंग लेने की, हाँ, हाँ, साउथ फेसिंग लेने की नौबत ही आ गई, तो बेटर यू इट शुड बी कंप्लीटली सर 101% वास्तु एनेबल्ड, वास्तु कंप्लाइंट प्रॉपर्टी होनी चाहिए। नहीं तो सबसे पहले सर दो चीजें हम लोग देखेंगे, एक तो वेल्थ रिलेटेड इश्यूज, और दूसरा फीमेल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज घर में। okay. ये दो बहुत मेजर प्रॉब्लम्स फेस करेंगे अगर साउथ फेसिंग रहा तो। इट्स बेटर अगर साउथ फेसिंग लेने की नौबत आ गई तो वास्तु कंप्लाइंट हो। और सर, मैंने एक टेक्निक का यूज किया था, लैचर एंटीना टेक्निक, जिसमें हम हाँ हाँ एंटीना हाँ. का इस्तेमाल करके फ्रीक्वेंसीज को देखते हैं।
अगर वहां पे पॉजिटिव साइड में फ्रीक्वेंसी पैरामीटर आ रहा है प्रॉपर्टी घूमने के बाद 70%, 70%, तो वास्तु इज गुड फॉर गो। लेकिन अगर 30% आ रहा है तो वास्तु इज नॉट गुड फॉर गो एज पर फ्रीक्वेंसी। ये ग्राउंड फ्रीक्वेंसी Okay. को लेता है और सराउंडिंग फ्रीक्वेंसी को लैचर एंटीना अब्सॉर्ब करता है। सो उसका डायरेक्शन डिपेंड करता है कि कहाँ जा रहा है। इस डायरेक्शन में होगा दैट इज 70% ऑफ द एंटीना, तो इट्स गुड टू गो। और अगर थोड़ा सा इस साइड में होगा लेफ्ट साइड में, तो वास्तु इज नॉट गुड फॉर गो। Vastu is not good for him. So even the यस soil composition is a determinant and a factor when it comes to Vastu. Because of course, what is the composition of minerals, entire composition, that will also be matter. Amazing, sir. एग्जैक्टली। So this is what I had to ask. Anything else you would like to share, sir? Would you like to share some of your projects? या आई, जैसे कि मैंने बोला कि मेरा जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट रहा वो 800 सीआर का रहा। इट्स अ वेरी I think डिफिकल्ट वन फॉर one मी। thing Pratiksha has missed and और ये इसके बिना ये इंटरव्यू कंप्लीट नहीं होगा। आपका जर्नी सर मैं सुनना चाहता हूँ। How did you get into this field? What is how has been your journey in these many years? यस सर, इट वाज पब्लिश्ड इन वन ऑफ द न्यूज आर्टिकल ऑल्सो। मैं वो भी लिंक शेयर कर दूंगा। इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या हुआ था ना सर, जब मैं छोटा था, व्हेन आई वाज चाइल्ड, और मम्मी मेरे एक्चुअली थोड़ा सा ब्रदर के करियर को लेके शी वाज थोड़े से डिस्टर्ब, सो शी वेंट टू वन ऑफ द एस्ट्रोलॉजर। और वो एस्ट्रोलॉजर के पास में जब वो गए, तो उन्होंने बहुत अच्छा प्रेडिक्शन किया। एवरीथिंग वाज करेक्ट अबाउट माय ब्रदर, फ्रॉम व्हाट हैपेंड टू पास्ट, व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, सारी चीजें राइट थी। दैट अट्रैक्टेड मी अ लॉट। तो एट द एज ऑफ 14 आई वाज थिंकिंग अबाउट कि हाँ, ये चीज कुछ तो है बॉस, है ना। लाइक आई एम नॉट एट ऑल बिलोंगिंग फ्रॉम अ नेपोटिज्म फैमिली कि एस्ट्रोलॉजर फादर है। ओके, तो बेटा भी एस्ट्रोलॉजर बन गया, नॉट एट ऑल। देन आई कंसिडर्ड इट कि ये चीज क्या है। तो मैंने इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू कर दिया सर। एंड एट द एज ऑफ 16 आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम वन ऑफ द फेमस एस्ट्रोलॉजर, रिनाउंड सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर। तो मैंने उनके साथ में काम करना शुरू किया, उनसे नॉलेज लेना शुरू किया। एंड उनका एक टर्म जो बहुत अच्छा लगता था, वो कभी भी कोई भी पर्सन आता था उनके पास में रिजल्ट्स लेने के लिए, तो वो हमेशा उनके ग्रहों पे ध्यान देते थे, उनके अंकों पे ध्यान देते थे, और तीसरा है उनके वास्तुशास्त्र पे ध्यान देते थे, है ना। तो मैंने ये मेरा लाइन बना दिया प्रॉपर। मतलब किसी भी इंसान को अगर लाइफ अच्छी चाहिए, तो उनके ग्रह अच्छे चाहिए, मतलब एस्ट्रोलॉजी, उनके अंक अच्छे चाहिए, मतलब न्यूमरोलॉजी, और उनका वास्तु, मतलब वास्तुशास्त्र होना चाहिए। तो फ्रॉम देयर अगेन आई स्टार्टेड टेकिंग एट द एज ऑफ 16 अ डीपर नॉलेज, और 2 साल के अंदर में आई हैड अ सर्टिफिकेशन। मैंने उनके साथ में फिर इंटर्नशिप की 2 साल में, एंड देन आई स्टार्टेड माई ओन ब्रांड दैट इज maheshmankar.in। तो maheshmankar.in से हम लोगों ने फिर शुरुआत की। पहले तो उनके साथ में काफी अच्छा काम किया, फिर मैंने अपना पर्सनल काम अच्छा किया, उनको भी काफी अच्छा लगा कि मैं एक अच्छे लेवल पे रिजल्ट्स दे पा रहा हूँ। देन अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड ना, उनका देहांत हो गया, उनका निधन हो गया। Oh, तो निधन होने के बाद में उनके जितने भी क्लाइंट्स थे, जितने भी सेलिब्रिटी क्लाइंट्स थे, वो क्लाइंट्स उन्होंने, मतलब एक बोलते हैं ना, एक वारसा जो मिलता है, एक कीप गोइंग वाला जो चीज मिलता है, बिकॉज ही डोंट हैव सन, उनके पास में Okay. बेटा नहीं था, तो वो मुझे पास ऑन हो गया। और उन्होंने अपने सेलिब्रिटी क्लाइंट्स को मुझे पास ऑन कर दिया। एंड देयर ऑनवर्ड दे आल्सो स्टार्टेड ग्रोइंग। मतलब जो रिजल्ट्स गुरुजी दे रहे थे, वो रिजल्ट्स मैं भी देने में सक्षम रहा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सर, मुझे एक फिर तब एक चीज बहुत बुरी लगती थी ना, एस्ट्रोलॉजी को निगेटिव मार्केट, मतलब मार्केट में निगेटिव बहुत एस्ट्रोलॉजर्स या वो Hmm. बाबा लोग जो होते हैं ना, वो प्रमोट करने लग गए थे, वशीकरण, अचानक धन लाभ, है ना। ये नहीं होता है सर एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में, वास्तुशास्त्र में। इसमें सिर्फ हम एक चीज कर सकते हैं कि निगेटिव चीजों को थोड़ा सा दूर रखा जाए और पॉजिटिव चीजों को बढ़ाया जाए। तो मुझे ऐसे लगा कि इसको प्रमोट करना शुरू करना चाहिए। देन आई स्टार्टेड ब्रांडिंग माई सेल्फ, ताकि लोगों तक गलत नॉलेज पहुंचने से अच्छा लोगों को एक साइंटिफिकली और प्रॉपर नॉलेज पहुंचना शुरू हो। तो मैंने इस चीज की ब्रांडिंग शुरू की, एंड देयर हाउ माय जर्नी स्टार्टेड। मतलब मी and एज अ क्लाइंट टू मी एज अ सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तुशास्त्र, ऐसा गया ये पूरा जर्नी। what is your native, sir? कहाँ से हैं सर आप? माय नेटिव इज नागपुर। You're from Nagpur. Okay. यस, And फ्रॉम currently you नागपुर are itself। in currently you are नागपुर in itself। अच्छा you're नागपुर from itself। Nagpur. यस, मैं नागपुर से हूँ, नेटिव नागपुर है, बट यू नो माय लॉट्स ऑफ क्लाइंट्स आर फ्रॉम पुणे आल्सो, मुंबई आल्सो, कोल्हापुर, मतलब पूरा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाहर। एंड इवन सर आई यूज्ड टू डील क्लाइंट्स आउटसाइड इंडिया आल्सो। Okay. Okay. यस। तो
ये चीज भी है कि इंडिया के बाहर भी आज इसको माना जा रहा है. And are you married, sir? You look very young. Are you married? Yes, I am married. I have a 9-month baby, a अच्छा little baby also. अच्छा. Exactly, sir. That is great, sir. So let's say, sir, Yes. for example, I am a civil engineer and I Hmm. happen to learn Vastu Shastra because Hmm. our core competency is teaching them designing software. So a Hmm. lot of our clientele are also architects and interior designer who are looking for job seekers. So what is Hmm. the scope and what is the earning opportunity for a Vastu consultant who is a civil engineer and also knows interior design? How could Vastu help earn more money in their careers? एग्जैक्टली सर. सर एक रिवॉल्यूशन ला सकता है अगर एक आर्किटेक्चर है कि सी मेरे में एक नेगेटिव पॉइंट क्या है. फ्रैंकली स्पीकिंग सर, आई एम वेरी गुड एट वास्तुशास्त्र बट आई एम नॉट अ सिविल इंजीनियर. तो Okay, ये एक चीज okay. है ना. तो मैं ये मानता हूँ कि अगर कोई सिविल इंजीनियर इसमें रेवोल्यूशन ला सके तो ही कैन क्रिएट अ वंडर्स. ओके. कोई भी नाम तभी बड़ा होता है जब वो उस फील्ड में रेवोल्यूशन लाता है. दिस इज Hmm. फॉर श्योर. राइट. तो मैं एक चीज पक्का चाहूंगा कि अगर कोई सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्चर वास्तु के साथ में अपने आप को प्रमोट करता है इन द मार्केट, तो सर क्लाइंटल उसका वैसे ही बढ़ जाएगा एंड इट हैज अ वेरी ह्यूज स्कोप. है ना. ये काफी अनटैप मार्केट है. अनटैप तो छोड़िए, मैंने तो आज तक सर ऐसा कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं देखा है दैट सिविल इंजीनियर विथ वास्तु एक्सपर्ट. है Okay. ना. तो अनटैप्ड ही बोल सकते हैं इसको. अगर कोई इसमें टैप कर लेता है कि दैट आई एम अ रिनाउंड सिविल इंजीनियर एंड वास्तु एक्सपर्ट, या फिर एक ऐसा टर्म डिजाइन कर लेता है ना, रिनाउंड वास्तु सिविल इंजीनियर, राइट, या वास्तु सिविल इंजीनियर, तो वो टर्म ही एक अपने आप में ब्रांड हो जाएगा ऑटोमेटिकली. बिकॉज इट इज अ रिवॉल्यूशन इन दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री. है ना. तो फिर स्कोप अनलिमिटेड बन जाता है सर. So the consultancy that you provide, is it to the actual client or to his architect? Or how does the सर बोथ. coordination happen between, yeah, या एग्जैक्टली coordination सर, कैसे बोथ. होता है सर? हाँ. राइट. बोथ केसेस में कैसा हो जाता है, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम माय क्लाइंट्स अप्रोच मी फॉर वास्तुशास्त्र इटसेल्फ. है ना. तो वास्तुशास्त्र में मैं जब क्लाइंट आते हैं तो वो मैप्स वगैरह लेके आ जाते हैं और मैप्स में आई यूज टू गिव द प्रॉपर करेक्शन और प्रॉपर चेंजेस करके वो आर्किटेक्चर में चले जाते हैं. ओके. तो आर्किटेक्चर के पास चले जाते हैं और वो बताते हैं मेरे जो चेंजेस का एक रिपोर्ट बनता है सर. वो रिपोर्ट वो आर्किटेक्चर पढ़ता है, आर्किटेक्ट पढ़ता है और वो बाद में बताता है कि हाँ हमें ये चेंजेस करने हैं और तो कर लेंगे, नो प्रॉब्लम. और फिर वो चेंजेस होने के बाद में मेरे पास में क्लाइंट्स आते हैं, देन आई यूज टू अप्रूव इट प्रॉपरली आफ्टर चेकिंग द रिपोर्ट. सेकंड सर, मेरे पास में डायरेक्ट आर्किटेक्ट भी आते हैं, डायरेक्ट सिविल इंजीनियर्स भी आते हैं. एज आई सेड, आई एम एसोसिएटेड विथ लॉट्स ऑफ सिविल इंजीनियर्स, सिविल कंपनीज, रियल एस्टेट कंपनीज. बहुत सारे आर्किटेक्ट भी है, फेमस आर्किटेक्ट्स फ्रॉम इंडिया इटसेल्फ, वो भी बहुत सारे हैं. तो वो डायरेक्ट मेरे पास में आते हैं और डायरेक्ट आई यूज टू टेल देम कि हाँ प्रॉपर्टी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में है. नॉर्थ वेस्ट, मैंने नॉर्थ ईस्ट की बात की थी. ओके. नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में या साउथ वेस्ट कॉर्नर में है ना, तो हम ऐसा ऐसा करेंगे और ऐसी ऐसी चीजें रहेगी. फिर वो रिपोर्ट बना के खुद पूरा बताते हैं, पूरा प्लान बना लेते हैं और प्लान और रिपोर्ट के साथ में वो क्लाइंट को सबमिट कर देते हैं. ये भी एक So प्रोसेस हो though, जाती so though technically you must not have studied architecture or civil engineering, but you are the final approval when it comes to these big properties. People who are really है. scared of the loss of wealth. And hats off to you, sir. Hats off to you. Yeah. थैंक यू सो मच सर. And थैंक it is यू. really commendable that how you have developed your brand. It was great pleasure meeting you, sir, and hope to have a few more sessions with you where I will get few of my really loved students to talk to you directly with their queries. Yeah, Oh, thank you Pratiksha, so much. anything else you have to ask? Yeah. Yeah, thank you, sir. Thank you for your valuable time, sir. Actually, मैंने आपके जब लिंक्डइन पे प्रोफाइल देखी तो तभी मेरे दिमाग में आया कि वास्तुशास्त्र के लिए आपसे बढ़िया तो कोई नहीं मिलेगा हमें जो इतनी सारी अच्छी इंफॉर्मेशन मिलने वाली. सो Thank you थैंक so यू सर, much. थैंक यू फॉर योर टाइम. इट वाज ग्रेट टाइम सर. थैंक यू. Thank And you, and sir, it was pleasure talking to you both. a special invitation from me and Pratiksha ma'am. Anytime you are in Pune, please let us know, sir. We would like to host you personally. Yes. Oh, It was thank you so great much, meeting sir. you, sir. Yeah. Same here, sir. It was really pleasure talking with you both, and I'll say this again and again. Today I met with two James for sure. Yes. That was very kind of you, sir. Yeah. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you. Have a good day. Yes, sir.
Great day. Keep smiling, everyone. Yeah, bye. Yeah. Thank you. Bye.